Good morning, students. Myself BN Singh, your pole science teacher. Today I am going to reflect on the second chapter entitled The End of Biopolarity from your contemporary world. After the Second World War, two big superpowers came into existence. They were the USSR and the USA. Those countries which came under the blocks of the USSR, they are known as the Second World. In this situation, in this process, Germany was divided into two parts, the West Germany and the Eastern Germany. Here, a wall was erected in between the West Germany and the Eastern Germany in 1961. But because of the dissatisfaction among the people who were closely related with religious point of views, cultural point of views, they started demonstration. And finally, in 1989, the Berlin Wall demolished by the people of both sides and Germany was unified. Now we are going to discuss about what was the Soviet system. Students, the very Russian Revolution took place in 1917. Then onwards, the very Communist Party came into existence and it grabbed all private institutions, economy, political institutions. Each and everything was controlled by the Soviet Union. Here there were 15 republics who formed. They were the founding members of Soviet Union. These 15 republics, they had their contribution, but the Communist Party controlled the all power, even the government power. Means everything was running around the Communist Party. Those 15 republics, they were also the members of Soviet Union. They had their coalition, India. And here, all the economic power came into existence in the hands of control of Communist Party. So, the very Communist Party, Soviet Union, started doing the job of development. So, all the economic resources, they were utilized by Communist Party, Soviet government. And it started producing each and everything right from pins to cars, and it started distributing among the domestic market. Means the people in Soviet Union, they were getting each and everything. Of course, whatever the oil, minerals, machinery and factories, everything was under the control of Communist Party. इस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ का निर्माण किया और लोगों को सेटिस्फाई किया। ये बात सत्य है, इसमें सच्चाई है कि उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स निश्चित रूप से जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके स्टैंडर्ड के नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि हमारे लोगों को हमारे देश में प्रोड्यूस गुड्स मिलेगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम, दे टुक अ गुड स्टेप। उन्होंने एक सब्सिडाइज्ड सिस्टम लाया जिसमें उन्होंने जो भी हेल्थ केयर था, चाइल्ड केयर था, बेसिक नीड्स थे, उनको सब्सिडाइज कर दिया और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों को दिया। तो इस तरह से पावर निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ गया
और सारी चीज़ों को ये लुभाने की कोशिश की गई कि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। हियर those people who had their aspiration to get each and everything for their all round development, उन्होंने अपने विकास के बारे में जो सोचा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने दिखाया था, कहीं ना कहीं उनके एस्पिरेशंस को, उनकी आशाओं को धक्का लगा, क्योंकि वो अपनी बात, अपने विचारों को एक डेमोक्रेटिक वेज की तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और अपने डिससेटिस्फैक्शन को इन लोगों ने बड़े ही सुंदर ढंग से कार्टून्स बनाकर, जोक्स बनाकर प्रोड्यूस किया, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से वहाँ के लोगों में भी डिससेटिस्फैक्शन एमर्ज किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 50 रिपब्लिक्स थे, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे सोवियत यूनियन के, और रशिया भी वन ऑफ देम, इसमें से रशिया भी एक था, लेकिन पावर इसके हाथों में था, ये डोमिनेट कर गया। परिणाम स्वरूप जो 15 रिपब्लिक्स थे उसमें रशिया डोमिनेंट हो गया और अन्य रिपब्लिक्स को उसने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, नेचुरली देयर वाज डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम एंड हेंस time to time they were producing, they were showing. In this regard, I would like to convince you that whatever the production by there was done by the Soviet Union, but it also started producing arms, means it also came into the race of arms like that of USA, but it has to face a lot of problems. I know students must know that whatever the stress was given on the production of arms, other fields were neglected. Of course, in the factory everything was going to be produced, going smoothly. But the food problems started there because agriculture was neglected there. इस प्रकार से फूड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोवियत यूनियन ने दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 1970s के बाद वहाँ पे एक ठहराव आ गया, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन आ गया। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं जो सिस्टम था सोवियत यूनियन का, वो कम्युनिस्ट बेस्ड सिस्टम था और वहाँ पे सारी पावर उसके हाथों में आ गया। परिणाम स्वरूप अन्य जो रिपब्लिक्स थे उसे डिससेटिस्फाइड हो गए क्योंकि उनको नेगलेक्ट किया गया। ये सच्चाई है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। Here, you know very well, Gorbachev, who became the General Secretary of Communist Party in USSR in 1985. Here, in 1985, Gorbachev became the General Secretary of Communist Party. You know, in that time, everything he just read so deeply, so clearly,
and he came to know, means Gorbachev studied the world economy, their infrastructure, their information, their technology, particularly in the Western countries. Because USSR, though it was advanced in military system, it became a superpower, but it lagged behind the West in respect of information and technology. Not only that, we have come to know, because of the grabbing of all the institutions by the Communist Party, people were angered. They were in difficult situation. They did not have hope to face such situation. इस तरह की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, क्योंकि जो उन्हें बताया गया था उसके अनुसार वो काम फुलफिल नहीं हुआ। तब उन्होंने गोर्बाचेव ने सत्ता में आने के बाद, सेक्रेटरी बनने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया और इस पॉइंट पर पहुंचे कि क्यों नहीं वेस्ट के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक तालमेल बैठाई जाए, वहाँ के टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हम साझा करें, शेयर करें और अपने देश का भी उत्थान हो, अपने देश का भी प्रोग्रेस हो। इन दिस रिगार्ड उसने रिफॉर्म करने की बात सोची, इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, अदरवाइज देश कहीं न कहीं अपने आप में बढ़ जाए। लोग डिससेटिस्फाइड हैं, लोगों में एंगर है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को इशारा कर रही थी कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और इस प्रकार उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और अपने गवर्नमेंट सिस्टम को अधिक से अधिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। ये सोच उनकी अच्छी थी, ये सोच निश्चित रूप से वर्ल्ड के साथ चलने का एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक प्रयास था। किंतु इस रिफॉर्म्स का स्टेप उठाने के दौरान ना ही गोर्बाचेव, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स, उस तरह की घटनाएं यहाँ पे संपन्न हो गई, घटित हो गई, जिसके विषय में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने तो रिफॉर्म्स लाने की बात कही और उसका प्रभाव कुछ अलग हो गया। एक्चुअली लोग चाहते थे कि जो हमें कठिनाइयाँ हो रही उसमें सुधार कैसे हो, तो रिफॉर्म्स की बात तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिफॉर्म्स की बात आई और उन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें 2 पार्ट्स हो, बल्कि जो जनरल पीपल थी उनका सुझाव था कि रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, गोर्बाचेव के द्वारा स्टेप लिए गए हैं, उससे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उससे सुधार हो रहे हैं और ये अच्छी बात है, बट इट्स गोइंग स्लोली, इट मस्ट बी hastened, it must be very speedy. Hence they were not satisfied. On the other hand, those communist leaders, they were enjoying the facilities of
communist government, they were not ready to go through reforms. They were afraid that what facilities, privileges they are enjoying would be discarded, उससे उनको वंचित कर देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स है, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे, दे वर कॉल्ड हार्ड लाइनर्स। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अपनी जो फायदे हो रहे हैं, जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं, उनसे उनको हाथ धोना पड़ेगा। दैट इज अ फैक्ट। सो वो नहीं चाहते थे, किंतु इसी बीच गोर्बाचेव का दृष्टिकोण साफ, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, नहीं तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मामले में पूरी दुनिया से पीछे छूट जाएंगे, फिर अपनी जनता को किसी भी तरह से उनकी समस्याओं से निदान हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात सोची कि रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स टू मेक द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मोर डेमोक्राइज्ड। इसलिए लेकिन इसमें हार्डलाइनर्स इसका अपोज करते हैं और उन्होंने यहाँ तक कि अटैक किया, और अटैक के माध्यम से इस बात को उन्होंने जता दिया कि हम रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, इसको कभी नहीं होने देंगे। बट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1991 and the very Boris Yeltsin, who came as a leader, and he was supporter of reforms. So in his leadership, the very system of reforms adopted, and in December 1991, the very USSR, now it became Russia, Ukraine and other country, means Belarus. They were three countries, republics, betterly known as republics. They were not countries, but they were republics. They just separated themselves and supported reforms. But Boris Yeltsin, in his leadership, it was supported by Russia, Ukraine and Belarus. These three republics, they established CIS, means Commonwealth Independent States, which were 15 in numbers. Now it created a problems for other republics, I mean 12 republics, how to cope with the situation. Even the Central Asian countries, they wanted to remain with the Soviet Union. ये चाहते थे कि हम सोवियत यूनियन के साथ रहें और इन्हीं के साथ हमारी भलाई, किंतु क्योंकि ये सिचुएशन बन गया, इसी आगे से कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को कैसे इस इशू को सॉल्व किया जाए। फिर एक सिस्टम बना और इन सारे रिपब्लिक्स ने मिल करके रशिया को, यूक्रेन को और बेलारूस को इन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS कर दिया। इस प्रकार से ये तीनों
फाउंडिंग मेंबर्स हुए और अदर रिपब्लिक्स अपने आप धीरे धीरे अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। एशियन कंट्रीज़ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि एक्चुअली उनके साथ क्या होगा। दे वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत यूनियन एंड नाउ द वेरी सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन in which Russia ने सोवियत यूनियन की जो एग्जिस्टेंस थी इन द वर्ल्ड में उसके लिए उसको डिक्लेयर कर दिया गया। मीन्स रशिया इनहेरिटेड सोवियत यूनियन पावर्स। It also secured its seats in the Security Council of United States, United Nations, और इस प्रकार से सोवियत यूनियन का एंड हो गया, डिसबैंड हो गया। थैंक यू। ओके।